you have been feeling your person's energy very strongly lately. So this particular reading is for you. If there are any unsaid words, emotions between both of you, then consider this message is for you all. So while I'm shuffling the cards, stay positive and take your person's name 3 times and take their names 3 times और कमेंट सेक्शन पे लिखिएगा 222 और अपने पर्सन की इनिशियल्स. सो लेट्स डीप डाइव इनटू योर रीडिंग. Three cards. First is the death card, the 7 of wands in reverse, and the 8 of cups in the shadow, and we have the 7 of swords in the beneath the shadow card. Okay, so what exactly these cards are telling me कि डेफिनेटली यहाँ पे कुछ एक फेज की एंडिंग हुई है. ठीक है, नॉट नेसेसरली द रिलेशनशिप हैज बीन एंडेड, बट किसी तरीके का एक फेज, एक पैटर्न जो कि एंड हुआ है आप लोगों के रिलेशनशिप में. ओके, एंड 7 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स ये बताता है एग्जॉशन. This card says that someone stopped fighting. Okay, this card talks more about the giving up. Okay, someone has been feeling tired defending themselves continuously. So it could be possible because of the imbalance of the energy where one person is investing more, chasing more, giving more, and other person is not doing any work. So उसकी वजह से एंडिंग आया है. हम डेथ कार्ड को भी एक बार क्लैरिफाई करेंगे कि डेथ कार्ड कब आया है, क्यों आया है, सॉरी. एंड इन द शैडो वी गॉट 2 cards. The first is 8 of cups and second one is of 5 of swords in the reverse. So this says about the emotional withdrawal. Okay, not necessarily the physical distance, but मुझे ना ज़्यादातर यहाँ पे emotional distance नज़र आ रहा है आप दोनों के लिए. ये आपकी relationship की इस time की energy है. With the 5 of swords over here, this says that there is some kind of a unresolved ego tension. Okay, there are certain things which actually left unsaid और इसने कहीं ना कहीं एक इमोशनल विड्रॉल की एनर्जी को क्रिएट किया हुआ है. ओके, मतलब यहाँ पे ना मुझे एक ऐसी एनर्जी आ रही है कि जो भी चीज़ें आपके रिलेशनशिप में एंड हुई है वो उस तरीके से नहीं हुई जिस तरीके से होनी चाहिए, जिसने बहुत ज़्यादा एक रिफ्ट क्रिएट कर दिया है. सो यस, समथिंग एंडेड, बट लेट्स सी कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपके रिलेशनशिप में एंड हुई है, और इज देयर एनी ईगो बैटल गोइंग ऑन. लेट्स सी, देखते हैं कार्ड्स में क्या आया है. So now, when I clarified the death card, I got the 2 cards, which is 8 of wands in reverse, along with the 4 of cups. So what exactly these cards are telling me that indeed the ending happened, and because communication slowed down or it has been stopped progressing. Okay, जो एक क्लियरिटी चाहिए थी आपकी कम्युनिकेशन में वो उस टाइम पर नहीं थी. एंड विद द
Four of Cups, it shows that the emotional distance. Okay, emotional dissatisfaction. There is someone who is emotionally unavailable, or they are not fully receptive with the kind of energy you are expecting from them. So yes, imbalance is there, और जो imbalance है वो ऐसा है कि इस कनेक्शन में एक पर्सन बहुत ज़्यादा दे रहा है और दूसरा पर्सन उस चीज़ को ना एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, मतलब वो उस एनर्जी को उसी वे पे रेसिप्रोकेट नहीं कर पा रहा है जिस टेंडेंसी के साथ आप वो एनर्जी भेज रहे हो. सो होता क्या है कि देखो, हम जब भी किसी रिलेशनशिप में रहते हैं हम चीज़ें देते हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ दे रहे हो किसी इंसान को, वेयर एज उस पर्सन की जो चीज़ें रिसीव करने की कैपेसिटी है वो सिर्फ और सिर्फ 60% है, और अगर आप 100% एफर्ट दे रहे हो, आप 100% अपनी एनर्जी दे रहे हो, तो क्या वो होल्ड कर पाएगा? नहीं कर पाएगा. ठीक है, तो वो क्या आ जाएगा? ब्लॉकेज क्रिएट हो जाएंगे. एंड दैट्स व्हाट हैपेंड इन योर कंडीशन एज वेल. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनको आपकी तरफ से फीलिंग नहीं है, फीलिंग्स हैं, लेकिन जिस तरीके से आप दे रहे हो, दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट. बट with the Knight of Cups and the Chariot card over here, so these two are something really important. So the Chariot shows the intention to move forward. Okay, despite the delay, despite the withdrawal from this person's end, there is a movement forming. लेकिन we have a Two of Swords in the shadow card. This is a shadow. तो Two of Swords shadow में ये बताता है कि which means indecision is still there. ओके, उनको आपसे बात तो करनी है, लेकिन वो इंटरनली भी बहुत सारी चीज़ों को ना प्रोसेस कर रहे हैं. ओके, उनको अभी तक ना वो प्रॉपर एक डायरेक्शन नहीं मिला है. आप देखिए ये इमेज को. ओके, ये पर्सन है, ये क्लियरली नहीं देख पा रहा है कि क्या करना है, किस डायरेक्शन में जाना, और यही हाल आपके पार्टनर का भी है इस टाइम पर. Okay, now let's check what's their current thoughts and future में क्या वो आपके लिए कोई एक्शन लेंगे या नहीं. हम कार्ड्स के थ्रू देखते हैं. Already got the 3 cards. Okay, 8 of Cups, 5 of Swords in reverse, and the Strength card. Very interesting cards we got. And in the shadow we have the Sun card over here. Okay, so इस टाइम पर आपके जो पर्सन के थॉट्स हैं विद द 8 of Cups over here, उनके दिमाग में ना अभी ये चल रहा है कि मैं जो इमोशनली दूर हो गया था मेरे पर्सन से, या मुझे जो दूर होना पड़ा, तो क्या मैंने सही किया? मतलब अभी ना एक कंटेम्पलेशन वाली एनर्जी है इनकी. ओके, ये रनिंग अवे वाली एनर्जी मुझे ना इनके साइड से फील नहीं हो रही है. ये इमोशनल ओवरवेल्म के बाद का जो स्टेप है, अभी फिलहाल आपके पर्सन उस एक डायनामिक में है जहां पर ना वो बार बार यही सोच रहे हैं कि क्या मुझे इतना डिटैच होना चाहिए था, क्या मैंने सही किया. ओके, एंड विद द 5 of Swords in the reverse, ये कार्ड क्या बोलता है कि वो इंटरनली ना बहुत सारी चीज़ों को, मतलब उनका जो बिहेवियर आपके साथ में एंडिंग पे रहा है ना, वो अभी उस एक
पार्ट को ना बार बार याद कर रहे हैं। एंड ये ना बहुत ज़्यादा एक रिग्रेट वाली एनर्जी है कि उनको ऐसा लग रहा है कि जो बिना मतलब का एक ईगो क्लैश हुआ वो नहीं होना चाहिए। जो आर्ग्यूमेंट हुआ था हमारे बीच में, वो आर्ग्यूमेंट नहीं होना चाहिए था। ओके जो ये ईगो की वजह से जो विन लूज डायनामिक आ गया था, वो एक चीज़ नहीं आनी चाहिए क्योंकि ये रिलेशनशिप है। ओके सो उनके थॉट्स में अभी ये चल रहा है दैट आई डोंट वांट टू फाइट एनी मोर। एंड विद द स्ट्रेंथ कार्ड, तो अभी ना आपके पर्सन किसी भी कोई एक इम्पल्सिव मोड में नहीं है। ओके वो अभी अपने आप को ना बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं। वो अपने अंदर ना एक स्ट्रेंथ गैदर कर रहे हैं कि भाई जब मैं इसके सामने आऊँगा या आऊँगी तो मैं फुली मैच्योर एनर्जी पे जाऊँगी। ओके अगर बात करेंगे तो हम बहुत कामली बात करेंगे। ठीक है, पास्ट में जो भी हुआ उस पर मैं मेरा पक्ष भी रखूंगा। तो इस किस्म की एक एनर्जी है। शैडो में हमारे पास कार्ड है द सन का। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये उनका सबकॉन्शियस माइंड है। ठीक है, तो उनके सबकॉन्शियस माइंड में ये चल रहा है कि जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं एंड वो आपके बारे में सोच रहे हैं, दिस इज द कंफर्मेशन। ओके तो आप जब भी उनके माइंड को क्रॉस करते हो तो उनको बहुत हैप्पीनेस फील होता है। ठीक है, उनको बहुत लाइट एनर्जी आपसे फील होती है। ओके उनके दिमाग में ना आपसे रिलेटेड पॉजिटिव एनर्जीज जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है। ओके चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन आपके लिए फिलहाल में कोई एक्शन लेंगे या अभी वो थोड़ा और वेट कर। हैव इज अ नाइट ऑफ कप्स, the Queen of Pentacles, wow, the Chariot card, the Three of Swords, good, the Emperor, and in the shadow we have the King of Pentacles. So आपके जो पर्सन है वो आपको ना अप्रोच करने का उनके अंदर इरादा तो है, बट नाइट ऑफ कप्स एक बहुत स्लो एनर्जी है। तो वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन उनका जो टोन होगा ना वो बहुत अपोलोजेटिक टोन होगा, एक बहुत कूल काम टोन होगा। ठीक है, इम्पल्सिव नहीं होगा, इमोशनल ऑफरिंग होगी। ठीक है, विद द चैरियट कार्ड ओवर हियर, दिस शोज दैट उनके अंदर ना मूवमेंट करने की इच्छा अभी फिलहाल में थोड़ी ज़्यादा है। ओके डिले नहीं होगा, बहुत ज़्यादा डिले नहीं होगा। महीनों की एनर्जी मुझे कहीं पे शो नहीं हो रही है। इट कुड बी पॉसिबल कि आप जब भी ये रीडिंग देखेंगे उसमें से 2 to 3 वीक्स के अंदर आपके पर्सन आपकी तरफ आएंगे। ठीक है, और एक इंटेंशनल एक्शन लेंगे। वो अपने पूरे कॉन्शियस सेल्फ में आ करके आपके थ्रू एक एक्शन लेंगे। ठीक है, विद द 3 ऑफ सोर्ड्स ओवर हियर, उनको पता है कि उन्होंने ना आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है और आपके जो काउंटर पार्ट है उनको भी बहुत हर्ट हुआ है जिस तरीके से चीज़ें एंडिंग हुई हैं। तो हाँ, अब वो रिपेयर करने आएंगे ज़रूर इस टूटे हुए दिल को। ठीक है, विद क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ओवर हियर, वो आपको ना एक बहुत ही स्टेबल, नर्चरिंग और ग्राउंडिंग एनर्जी में देखते हैं। ओके वो किसी भी तरीके से ना कोई एक इमेच्योर कन्वर्सेशन लेकर के नहीं आएंगे, कोई फ्लर्ट लेकर नहीं आएंगे, बट वो इस बार मैच्योरिटी के साथ आपके सामने आना प्रेफर करेंगे। जब उनके पास आपके सारे सवालों के जवाब होंगे ना, वो आपको तब अप्रोच करेंगे। ओके एंड विद द एम्परर एंड द शैडो कार्ड किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये एक बहुत ही पावरफुल कॉम्बिनेशन है। ठीक है, कि जो भी कम्युनिकेशन होगा वो बहुत ही मैच्योर कम्युनिकेशन होगा। ठीक है, कोई भी फालतू का कोई ड्रामा नहीं होगा, लेकिन सोल्यूशन होगा। सोल्यूशन ओरिएंटेड एक माइंडसेट से आपकी तरफ आपके पर्सन आएंगे। तो हाँ, वो आपकी तरफ एक्शन लेंगे। ठीक है, लेकिन सबसे पहले वो अपने फाइनेंशियल एस्पेक्ट को भी देखें, क्योंकि इस टाइम पर वो जब आएंगे तो वो किसी लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी को अपने माइंड में रख कर आएंगे। ओके एंड बिफोर कंक्लूडिंग दी रीडिंग, लेट्स सी
लव ओरेकल कार्ड से आपके पर्सन के क्या मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए, तो देखते हैं इस टाइम पे आपके पर्सन आपको क्या और कहना चाहते हैं, क्या डायरेक्ट क्लियर मैसेज देना चाहते हैं, देखते हैं। ओके, सी द चैरियट यहाँ पे जस्टिफाई हुआ। आई कांट होल्ड बैक एनी लॉन्गर, वो अब बहुत ज़्यादा टाइम तक आपसे दूर नहीं रहेंगे, ठीक है। वो आपको ये बताना चाह रहे हैं कि वो आपको फील करते हैं। ओके, आई विश आई कुड होल्ड यू टुनाइट। वाओ, ओके, आई नीड टू सी यू। ओके, नाइट ऑफ कप्स, they really want to see you. I feel the love. Okay, and I could lose myself in you. एक लास्ट कार्ड लेते हैं। वो 2 कार्ड्स निकल के आए हैं। उनको अब डर लग रहा है कि मैंने आपको खो दिया। 3 ऑफ सोर्ड्स, वो आपसे पूछ रहे हैं कि आर यू ओके। एंड गाइज दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो। तो रीडिंग अगर अच्छी लगी हो तो ऐसे ही रीडिंग के लिए बने रहिए, मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू कॉमेंट 222 reunion with your person's first initial to claim this energy. Bye bye.